السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول ضلاؤٹ پر ناول ارتقا کے ساتھ، جس کے رائٹرز ہیں سجل الطاف اور ارحم جاوید، اور یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں، ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ انسان کا ماضی ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ویئر ہاؤس کی فضا سرد اور بھاری تھی۔ چھت سے لٹکتا بلب ہلکی ہلکی روشنی دے رہا تھا، جیسے لوہے کے ستونوں کے لمبے سائے فرش پر دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں پانی ٹپکنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچانک ایک ہنسی گونجی، بے ترتیب، پاگلوں جیسی، جو خالی ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ تم بیچاروں کا وقت جلدی آ گیا، افسوس۔ سعد اور زنیرہ دونوں بندھے ہوئے تھے، کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور ٹھنڈ اب ہڈیوں تک اتر چکی تھی۔ دونوں کو ایک ہی رسی سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ ان کی پشتیں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رسی ان کے بازوؤں کے گرد کئی بار لپیٹی گئی تھی۔ گرہ اتنی سخت تھی کہ حرکت کرنا بھی عذاب لگ رہا تھا۔ زنیرہ نے کلائی موڑ کر رسی ڈھیلی کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں کیوں باندھا ہوا ہے؟ چاہتے کیا ہو تم؟ سوال میں پوچھوں گا، اس نے اپنی پستول اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی بدصورت تھی اور خطرے کا عجیب امتزاج تھا۔ موٹا جسم، کندھوں تک پھیلے الجھے بال اور گھنی داڑھی اسے کسی سڑک چھاپ بادشاہ جیسا بناتے تھے۔ آنکھوں کے گرد پھیلا سیاہ کاجل اس کی نظریں اور بھی سرد اور بے رحم بنا رہا تھا۔ سبز پرنٹڈ شرٹ کی آدھی آستینوں سے ابھرتے بازو طاقت کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ گلے میں جھولتی موٹی زنجیر ہر قدم پر ہلکی سی جھنکار پیدا کر رہی تھی۔ اب وہ سعد کی طرف متوجہ ہوا، اسے سر سے پاؤں تک تنزیہ دیکھا۔ سعد زمان، سنا ہے تم کافی مغرور مزاج کے مالک ہو۔ ان کے سامنے ٹہلنے لگا اور پھر رکا۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں بے بسی کی تصویر بنے؟ سعد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنے جسم کو ہلکا سا جھٹکایا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، دیکھ رہے ہو میں خوف سے کانپ رہا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے جیب سے چمکتا ہوا چاقو نکالا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سعد کی ٹانگ میں گھونپ دیا۔ سعد کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ اس کا جسم جھٹکے سے تڑپ اٹھا اور بندھے ہوئے ہاتھ بے بسی سے ہلنے لگے۔ خون آہستہ آہستہ بہنے لگا، جبکہ وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، جیسے کسی کے درد میں اسے عجیب سی تفریح مل رہی ہو۔ لو، تمہاری کپکپاہٹ دور کر دی۔ سعد کا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، اس نے دانت بھینچے ہوئے کہا۔ وہ بے فکری سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جیسے پیچھے چھوڑا ہوا منظر اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ خون کی سرخ لکیر فرش پر رینگتی ہوئی آہستہ آہستہ زنیرہ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم کانپنے لگا اور خوف سے وہ رونے لگی۔ زنیرہ نے گھبرا کر خود کو ہلانا شروع کر دیا۔ وہ پیچھے کی طرف زور لگا کر سعد کو دور دھکیلنے لگی۔ دور ہٹو مجھ سے، اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ سعد نے تھوڑا سا گردن موڑنے کی کوشش کی اور جھنجھلا کر بولا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ چپکنے کا۔ زنیرہ کی نظریں فرش پر پھیلتے خون پر جا ٹکی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سانس تیز ہو گئی۔ مجھے خون سے خوف آتا ہے، دور ہٹو، وہ گھبرا کر بولی۔ پھر اس نے غصے اور بے بسی سے کہا، یہ سب تمہاری غلطی ہے، تم تمیز سے مان جاتے تو وہ تمہارا نوکر یہ سب نہ کرتا اور میں یہاں تمہارے ساتھ بندی نہ ہوتی۔ سعد کے چہرے پر ناگواری ابھری، سخت لہجے میں بولا، وہ نوکر نہیں ہے، وہ دنیا کا واحد شخص ہے جس پر میں یقین کرتا ہوں، اور تم لڑکیاں کسی چیز کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتی؟ گرہ اتنی سخت تھی کہ حرکت کرنا بھی مشکل تھا۔ اس نے اپنے بندے ہاتھوں سے زنیرہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بار بار خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سی ذمہ داری؟ دور ہٹو مجھ سے، زنیرہ تقریباً چیخ اٹھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسی لمحے وہاں سے بھاگ جاتی۔ سعد نے جھنجھلا کر کہا، تمہاری وجہ سے ہم یہاں ہیں، ہم نے کہا تھا گارڈز کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچانک اوپر سے بھاری آواز گونجی، بکواس بند کرو تم دونوں۔
दाढ़ी वाले आदमी की चीख सुनकर दोनों फौरन खामोश हो गए। बेबसी कमरे में फैल गई। काबिल और ज़रीन एक दूसरे के सामने बैठे थे। ज़रीन ने अपने बैग में चीज़ें रखनी शुरू की, चाबियां उठाने के लिए झुकी, फिर उसने सर उठाया, नज़रें सीधी काबिल की आंखों में जमाई। उम्मीद है आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, वरना मैं आपको अदालत के ज़रिए ज़रूर सबक सिखाऊंगी। किसी खुशफहमी में ना रहिएगा। काबिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और आराम से बैठा, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मसला भी उसके लिए मजाक बन जाए। ज़रूर, अदालत जाने की बजाय आप यहाँ आ सकते हैं। हम साथ बैठकर केक खाया करेंगे। उसके लहजे में वही हल्की हंसी छिपी थी जो हर संजीदा मौके पर भी जाहिर होती थी। हर लफ्ज़ में तंज और मजाक का रंग। ये काबिल ही था जो कभी भी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेता, चाहे माहौल कितना ही दबाव वाला क्यों ना हो। ज़रीन के चेहरे पर तेज़ गुस्सा और नागवारी के आसार उभर आए, लेकिन काबिल को उसकी संजीदगी पर कोई फ़र्क न पड़ा। ज़रीन अभी अपनी नागवारी के एहसास में घिरी हुई थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। यह ज़ुनैरा के फ़ोन का सिक्योरिटी फ़ीचर था, लेकिन जैसे ही स्क्रीन की रोशनी चमकी, ज़रीन के चेहरे पर वाज़ेह तशवीश और झुंझलाहट छा गई। काबिल ने फ़ौरन उसके तासुरात पढ़ लिए। ओह, बैड न्यूज़? काबिल ने धीमे मगर पुरअसर लहजे में पूछा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने 4 साल पहले ज़ोई के फ़ोन में सिक्योरिटी फ़ीचर्स डाले थे। इसकी रिंग उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करती है। जब भी उसकी हार्ट बीट मामूल से तेज़ होती है तो मुझे ये नोटिफिकेशन आ जाते हैं। वो आमतौर पर बहुत पुरसुकून रहती है। ज़रूर कुछ हुआ है, आप साथ से रब्ता करें। ज़रीन की आवाज़ में फ़िक्र वाज़ेह थी, आंखों में बेचैनी छलक रही थी। काबिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वो साथ के साथ है। हो सकता है साथ को देखकर उसका दिल रुक गया हो। ज़रीन की भवें उचक गई। आप 2 मिनट के लिए संजीदा नहीं हो सकते? आपको ये सब मजाक लगता है? ज़ुनैरा मेरी बेटी की तरह है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपका वो हश्र। उसी लम्हे काबिल का फ़ोन बजा। काबिल, कहा था तुम्हें अभी सिक्योरिटी कम ना करना। मैं उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। काबिल ने आराम से कहा, रिलैक्स जाज़ीब, वो बिल्कुल ठीक है। ज़रीन की सांसें अभी भी तेज़ थी, मगर काबिल अभी पुरसुकून दिखाई दे रहा था। फ़ोन मुनक़ता हो गया और ज़रीन ने काबिल की तरफ नज़रें जमाई। क्या हुआ? उसने आवाज़ में इज़्तिराब के साथ पूछा। काबिल ने हल्का सा सर हिलाया और मुतमईन लहजे में बोला, कुछ नहीं, बस साद और ज़ुनैरा ट्रैक नहीं हो पा रहे। ज़रीन की भवें तेज़ हो गई, आंखों में गुस्सा और खौफ की लहर। क्या मतलब? नहीं मिल रहे? आपने कहा था सिक्योरिटी है। आप इतने आराम से कैसे हैं? आपको अंदाज़ा ये कितनी बुरी खबर है? उसकी आवाज़ तकरीबन चीख में बदल गई। काबिल ने उसके कॉफ़ी के कप की तरफ देखा और शिकवा भरे लहजे में कहा, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। मैंने मेहनत से बनवाई थी। ज़रीन के हाथ कांपने लगे। मैं आपका सर फाड़ दूंगी। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। काबिल ने गहरा सांस लिया और कॉफ़ी का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, आह, किन लोगों में फंस गया हूँ। बच्चे नहीं हैं वो, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ज़रीन ने अपना फ़ोन उठाया और जल्दी से चंद नंबर डायल करने लगी। काबिल ने नरमी से कहा, आप यहाँ बैठे, वो बिल्कुल ठीक है। साथ पर मैंने ट्रैकर लगा रखा है, वो दोनों महफूज हैं। काबिल ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, ज़रीन, यकीन करें मुझ पर, सब ठीक है। लेकिन ज़रीन को अब उस पर ज़रा भी एतबार बाकी न रहा था। और नहीं, यकीन नहीं कर सकती। मैं आपके साथ आऊँगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। काबिल अपनी जगह से उठा। ओके चले। साद का खून काफ़ी बह चुका था। हर लम्हे उसे बेहोशी की दहलीज पर ले जा रहा था। ज़ुनैरा बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ लरज़ रहे थे। वो बार बार साद को झटका देकर जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई असर न हुआ। आह, काफ़ी खून बहा दिया तुमने। अब तो अपनी औकात का पता चल गया होगा। वही दाढ़ी वाला खौफनाक शख्स उनके पास दोबारा आया। ज़ुनैरा ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, खौफ और इज़्तिराब में। प्लीज़ हमें जाने दो, जो कुछ तुम्हें चाहिए सब दे देंगे। उसने लालच देने की कोशिश की। वो शख्स दरिंदगी और खौफ का पैकर पिस्तौल हाथ में लिए ज़ुनैरा के पास आया। उसने ज़ुनैरा के बाजू पर पिस्तौल रख दिया और हंसते हुए कहा, कहा था बोलूँगा सिर्फ मैं, अब ज़बान को लगाम लगाना भी सीख जाओगी। अचानक फिज़ा को चीरती हुई गोली की एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी
अगले ही लम्हे हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। गोली उस दाढ़ी वाले आदमी के हाथ पर लगी थी। वो दर्द से तिलमिलाकर पीछे हट गया और उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर गिर गया। उसी लम्हे वेयरहाउस के भारी दरवाजे चरचराहट के साथ खुल गए। सबकी नज़रें बैक वक्त दरवाजे की तरफ उठ गई। सामने से एक आदमी सियाह सूट में मलबूस अंदर दाखिल हो रहा था और उसके बिल्कुल पीछे एक औरत भी आ रही थी। उस आदमी की चाल में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे यहाँ मौजूद किसी चीज़ से उसे कोई ख़तरा ना हो। उसका एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ में पिस्तौल था। कदम नहायत ठहराव के साथ आगे बढ़ रहे थे। दाढ़ी वाला आदमी गुस्से से चीख उठा, क्या देख रहे हो? जान से मार दो इन दोनों को। एक गार्ड ने फौरन बंदूक उस आदमी की तरफ तान ली। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक ऊपर वाली मंजिल से गरजदार आवाज़ आई, कोई गोली नहीं चलाएगा। सब चौंक कर ऊपर देखने लगे। दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास एक आदमी खड़ा था, जो शुरू से ये सब मंजर खामोशी से देख रहा था। उसकी आवाज़ पर तमाम गार्ड्स ने फौरन अपनी बंदूकें नीचे कर ली। वह आदमी गैर मामूली ताकतवर शख्सियत का मालिक लग रहा था। उसकी एक आंख पर सियाह पट्टी बंधी थी, चेहरे पर पुराने जख्मों के निशानात थे और उसका 6 फीट लंबा कद, भारी जिस्म मज़ीद खतरनाक महसूस हो रहा था। नीचे फर्श पर सूट पहने वह आदमी अब भी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंदर आ रहा था, गोया पूरा वेयर हाउस उसी के इंतज़ार में ठहर गया हो। वो काबिल था। वह आदमी पागलों की तरह चीखने लगा, इसने मुझे गोली मारी है, मैं इसकी जान ले लूँगा। वह पागलों की तरह तड़प रहा था। उसके हाथ से खून टपक कर फर्श पर गिर रहा था। आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरे पर जुनून साफ नज़र आ रहा था। ऊपर वाली मंजिल की रेलिंग के साथ खड़ा आंख पर पट्टी वाला आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, कोई फ़ायदा नहीं, हम चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर सकते अब्दुल। तुम सब निकम्मे हो। अब्दुल ने गुस्से से दहाड़ते हुए बंदूक दूसरे हाथ में संभाली। उसके ज़ख्मी हाथ से खून अब भी बह रहा था, मगर इंतकाम की आग उसे दर्द भुला चुकी थी। उसने सीधा काबिल की तरफ निशाना बांधा। काबिल अब भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की धीमी चाल सुनसान वेयर हाउस में साफ सुनाई दे रही थी। एक हाथ अब भी जेब में था, जैसे उसे ज़रा भी खतरा महसूस ना हो। अगले ही लम्हे गोली चलने की आवाज़ गूंजी। एक भारी जिस्म ज़ोर से ज़मीन पर गिरा, मगर गोली काबिल को नहीं लगी थी। अब्दुल की आंखें हैरत से फैल गईं। चंद लम्हों के लिए वो सीधा खड़ा रहा, फिर उसका जिस्म बेजान होकर फर्श पर गिर गया। उसके सर के नीचे खून का दायरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। वेयरहाउस में गहरी खामोशी छा गई। गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत ना हो रही थी कि हिले भी। ऊपर खड़ा आंख पर पट्टी वाला आदमी हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से तुम हम पर हंसते होगे। काबिल के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। मैं अब इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं। उसी लम्हे ज़रीन तेज़ी से आगे बढ़ी। उसके कदमों की चाह फर्श पर गूंज रही थी। जब वो जुनैरा तक पहुंची, जुनैरा, वो घबराकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैं आ गई हूँ मेरी बच्ची, जवाब दो। उसने जुनैरा को ज़ोर से अपने बाजुओं में ले लिया। जुनैरा का जिस्म खौफ से कांप रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब थी। ज़रीन उसके बाल सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए रही, जैसे किसी माँ ने खौफज़दा बच्चे को थामा हो। उधर चंद कदम दूर साद नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी सांसें मध्यम थी और उसके कपड़ों पर खून फैल चुका था। ऊपर खड़ा आंख पर पट्टी वाला आदमी रेलिंग से हटकर काबिल को देखने लगा। काबिल, अब्दुल मर चुका है, तुम साद और जुनैरा को ले जाओ और ये मामला यहीं ख़त्म कर देते हैं, उसने कदरे संजीदा लहजे में कहा। काबिल रुक गया। उसकी सुरमई आंखें फासले से सीधा उस आदमी की आंखों में जा ठहरी। किसने हुक्म दिया था ये सब करने का शेरी? आंख पर पट्टी वाले आदमी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए झिझक उभरी। तो मुझे शहरयार कह सकते हो, वो आहिस्ता बोला। हमारा वो ताल्लुक अब नहीं रहा। काबिल की आवाज़ और भी सर्द हो गई। हुक्म किसने दिया था शेरी? वेयरहाउस की फिजा जैसे अचानक मज़ीद भारी हो गई। गार्ड्स खामोश खड़े थे, जैसे सांस लेने से भी डर रहे हों। चंद लम्हों बाद शहरयार ने नज़रें झुका ली। ज़रग़ाम भाई ने। काबिल ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे उसे पहले ही अंदाज़ा था। वह आहिस्ता आहिस्ता साद की तरफ बढ़ने लगा। मेरा एक काम करना, उसने सर्द लहजे में कहा।
उन्हें कहना अब्दुल को काबिल ने मारा है। रास्ता खुद ब खुद खाली हो गया। गार्ड्स एक एक करके पीछे हट गए। वेयर हाउस में अब सिर्फ कदमों की आवाज़ बाकी रह गई। काबिल ने साद के पास झुककर उसका हाथ थाम लिया। काफ़ी बड़े हो गए हो मेरे दोस्त। उसकी आवाज़ गैर मामूली हद तक नरम थी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साद नीम बेहोशी की हालत में था। उसकी आंखें मुश्किल से खुली और चंद लम्हों के लिए काबिल के चेहरे पर ठहर गई। उन आंखों में अजीब सा सुकून दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसे यकीन दिला दिया हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। काबिल ने अपनी टाई खोली। नीले रंग की वो टाई उसने तय करके साद के ज़ख्म पर मजबूती से बांध दी ताकि खून रुक सके। फिर साद को सहारा देते हुए उठा। ज़रीन ने फ़ौरन ज़ुनैरा को सहारा देते हुए उठाने की कोशिश की। ज़ुनैरा के कदम अब भी लरज़ रहे थे। वो लोग तकरीबन दरवाजे तक पहुंच चुके थे कि पीछे से आवाज़ आई, काबिल। आँख पर पट्टी वाला आदमी शहरयार रेलिंग के पास खड़ा उससे मुखातिब कर रहा था। काबिल ने पलटकर नहीं देखा, वो वैसे ही चलता रहा। शहरयार ने गहरी सांस ली और कहा, ज़रगाम भाई तुम्हें वापस बुला रहे हैं। सबके लिए बेहतर होगा कि तुम वापस आ जाओ। चंद लम्हों के लिए काबिल के कदम आहिस्ता हो गए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इंसान का माजी हमेशा उसका पीछा करता है। शहरयार के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। माजी से याद आया, उसने रेलिंग पर कोहनी टेकते हुए कहा, पिछले हफ्ते कोरंगी में 17 कत्ल हुए, सिर्फ एक इंसान के हाथों। वो जानबूझकर रुक गया, जैसे चाहता हो काबिल उसके बारे में पूछे, मगर काबिल के चेहरे पर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं आई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। शहरयार ने फिर कहा, पूछोगे नहीं किसकी बात हो रही है? वो जानता था जो नाम वो बोलने वाला है वो वक्त को एक लम्हे के लिए रोक सकता है। चंद कदम चलने के बाद काबिल ने बगैर मुड़े पूछा, किसने के? शहरयार की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वरीशा काबिल। ये नाम सुनते ही काबिल के कदम एक लम्हे को रुक गए। उसके चेहरे से वो पुरसुकून और मुतमईन तासुर आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा। उसकी सुरमई आंखों में एक पुराना साया लौट आया। शायद वाकई इंसान का माजी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ जी, तो हमारा 3rd एपिसोड बस यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा एपिसोड था और जाते जाते हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर गया है, वो है वरीशा काबिल। अब देखते हैं ये कौन है। आपको क्या लगता है ये कौन हो सकती है? सारा आज का एपिसोड फुल्ली एक्शन वाला था। एक ही सीन देखने को मिला हमें एक्शन वाला, और एपिसोड स्टार्ट हुआ, एपिसोड ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ और इंटरेस्टिंग भी। देखते हैं अगला एपिसोड कब आता है। इतने से ज़्यादा तो हमारा कुछ नहीं होता, ये तो हमारा एपिटाइज़र भी नहीं था। इससे हमारा पेट क्या भरेगा? ये चंद पेजेस हमारा कुछ नहीं करेंगे। इससे हम मुतमईन नहीं हैं, राइटर्स हमें और लंबे एपिसोड दें, है ना? आप लोग क्या कहते हैं? अपने कमेंट्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। खैर, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे मुझे आइडिया तो नहीं है कि इर्तिका के एपिसोड कब आएंगे। राइटर्स ने वैसे कहा तो था कि वीकेंड्स पर एपिसोड आया करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम मिलेंगे कल ज़रूर किसी और नावल के साथ, शायद सुन साइयाँ के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में बेइंतहा याद रखें। ओके, तो बाय।